नमस्कार विद्यासागर कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है वर्क। लास्ट टाइम से वी हैव सीन द टू काइंड्स ऑफ द मेन वर्ब, ओके, ट्रांजिटिव एंड intransitive. Today we will see forms of main verb and helping verb. Okay, now see, so to make the tense मेन वर्ब इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको टेंस बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है पार्ट? मेन वर्ब का पार्ट्स इम्पोर्टेंट से। तो मेन वर्ब के फॉर्म्स कौन से हैं? यानी टू मेक ए सेंटेंस बनाना है टेंस का, तो आपको वर्ब का फॉर्म्स यूज करना है। ठीक है, व्हाइल यूजिंग द मेन वर्ब फॉर्म्स इन अ सेंटेंस। नाउ सी, कौन सा फॉर्म सेंटेंस में करना है ये भी देखना है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में देखा था कि टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब के, जैसे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव है। आप लोगों ने ये भी देखा था कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव का डिफरेंस भी देखा था। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वर्ब फॉर्म। ठीक, पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक ठीक helping verb, it is also called what? Connecting verb. Connecting verb or linking verb. ठीक, देखिए हेल्पिंग वर्ब आप लोग क्या कहेंगे? कनेक्टिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ओके, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब है? देखिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म टू बी फॉर्म। ठीक है, देखिए आज आप क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक, तो पहला देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स कनेक्टिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो फर्स्ट पार्ट है टू बी का फॉर्म। ओके, टू बी का फॉर्म देखिए, विच टू बी का फॉर्म? एम इज आर। अगर एम इज आर है तो टेंस, विच टेंस? प्रेजेंट टेंस। Means whenever there is to be form, whether am is are, then which tense? Present tense. Means to make the present tense we can use to be form which am is are. Second, was and where. If was and where in a sentence में है तो आप कौन सा tense? Past tense. ठीक, means to make the past tense we have to use what? Was and were. Third, will or shall. Will and shall है which tense? Future tense. Future tense. Okay, now see, it is called to be form. Which to be form? Three. Am is are, present tense. Was and were used in where? Past tense. And will and shall used in future tense. Okay, second देखिए to do form. Which to do form? Do or does. Do or does is used in present tense. Okay, second, did used in past tense. It means whenever we can use to do form in a sentence, then we can say whether it is present tense or past tense. How to identify present tense or past tense? If there is do or does form in a sentence, then it is called present tense. And if there is did
to do form, then it is called past tense. Okay. Third number, to your form. Which to your form? Now see, has or have. Has or have, then it is present tense. Okay. Next, had, then past tense, and will have or shall have future tense. Okay. Now see, verb forms, helping verb to be का form, second to do का form, and third to have का form. Now see, by using the such type of the helping verb in a sentence, then we can find out which kind of the tense is here, whether present, past or the future tense. And so as to identify the present, past or the future tense, we have to see which helping verb form is used in a sentence. Okay. Now see, to be form, the to do form, it's with to be form, to do form or to have form. As far as the form is concerned, then we can identify the tense, present, past or the future. So as to identify the present, past or future, first of all we have to understand what the helping verb, which type of the helping verb is used in a sentence. Okay. Next, modal auxiliary, it is also helping verb. Okay. Now see, modal auxiliary, which modal auxiliary? Can, could, may, might, should, would, has to, have to. It is called modal auxiliary. ठीक, तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब का आप लोग जब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कौन सा है? द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट? स्टेट और एग्जिस्टेंस. ठीक, अगर स्टेट और एग्जिस्टेंस दिखाना है तो आपको किसका यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब. एंड हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके लिए है? टू एक्सप्रेस व्हाट? स्टेट और एग्जिस्टेंस के लिए. तो ये देखिए आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म. ठीक. नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेन वर्ब का फॉर्म. अभी मेन वर्ब का फॉर्म देखिए, मेन वर्ब का फॉर्म भी टेंस में यूज किया जाता है. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. ठीक है. मेन वर्ब के फॉर्म कौन से? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म. ओके. It's mean the main verb is most important to make the tense. Now see, first form of the main verb. First form of the main verb is used where? Simple present tense. Simple present tense. ठीक. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज कहां पे किया जाएगा? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है. समटाइम्स yes or is suffix is added to the first form of the main verb to make the simple present tense. But wait, we have to see what kinds of subject. Okay. Second form of the main verb. Second form of the main verb is used in where? Simple
past tense. Okay. Next, third form of the main verb. Most important. Third form of the main verb is used where perfect tense. Whether प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, इन परफेक्ट टेंस में किसका यूज किया जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ओके. इसके अलावा इन एडिशन टू परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज कहां पे किया जाएगा? पैसिव वॉइस. मीन्स टू मेक द पैसिव स्ट्रक्चर्स we have to use here what? Third form of the main verb. Its mean third form of the main verb is used to make perfect tense as well as the passive structures. Okay. And third form of the main verb, it is also called what? Past participle. ठीक, याद आएगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को आप लोग कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल भी कर सकते हैं, नहीं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए है कि परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज किया जाता है. एज वेल एज द पैसिव वॉइस अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज किया जाएगा. एंड नेक्स्ट लास्ट आईएनजी फॉर्म. टू एक्सप्रेस एक्शन हाउ गोइंग ऑन. अगर एक्शन गोइंग ऑन आपको एक्सप्रेस करना है तो किसका यूज किया जाएगा? आईएनजी का फॉर्म. व्हेनेवर देयर इज आईएनजी द फॉर्म इन अ सेंटेंस, इट्स मीन द एक्शन. हाउ इज एक्शन इज गोइंग ऑन. तो आईएनजी का फॉर्म इज यूज्ड इन वेयर कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? प्रोग्रेसिव टेंस. ओके. देन ये देखिए आपने मेन वर्ब के फॉर्म्स. पहले देखे थे आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म. फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब फॉर्म से आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है. सिमिलरली मेन वर्ब का फॉर्म भी यूज किया जाता है टू मेक व्हाट? टेंस बनाने के लिए. जैसे 4 फॉर्म यहाँ पे दिए हैं. जैसे फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस. थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस एज वेल एज पैसिव स्ट्रक्चर. Third form of the main verb is also called what? Past participle. And last one, ing form. Ing form means present participle. Okay. ing का form is used where continuous tense. Continuous tense means progressive tense. ठीक. तो ये देखिए आपने वर्ब का फॉर्म. इतना इम्पोर्टेंस किसके लिए इम्पोर्टेंस है? जब आप लोग टेंस बनाएंगे और कौन सा टेंस बनाना है तो आपको उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू मेक द टेंस हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब का यूज करना. तो ये अगर ये याद है आपको तो क्लियरली वी कैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट है, कौन सा है. ठीक. तो टेंस बनाने के लिए और आइडेंटिफाई बनाने के लिए मेन वर्ब का फॉर्म्स भी देखा है और हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म्स भी देखा है. ठीक है. यहाँ तो ये वर्ब का फॉर्म कंप्लीट हो गया. पहले वर्ब का फॉर्म देखते समय आप लोगों ने देखा था मेन वर्ब का फंक्शन क्या था? टू एक्सप्रेस एक्शन. हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कौन सा था? टू एक्सप्रेस स्टेट और एग्जिस्टेंस. ठीक है. पहले क्या देखा था? मेन वर्ब के काइंड्स देखा था. कौन से काइंड्स है? तो 2 काइंड्स है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. ठीक है. उसके बाद आप लोगों ने देखा है फॉर्म्स देखा. ठीक. ओके. कंप्लीट. हियर द नाउ वर्ब का जो भी फॉर्म है ये यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. ठीक. नेक्स्ट